हेलो एवरीवन, दिस इज राजन और आज मैं आपके लिए शुरू करने लगा हूं एक रियल एस्टेट सीरीज फॉर द एंटायर इंडिया। दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माय करियर इन रियल एस्टेट। दिस इज द गेट वेयर आई एंटर्ड 21 इयर्स अगो। नोएडा मैंने यहाँ पर एंटर किया था, ये मेरी अपनी सिटी है, तो ऑब्वियसली इस सीरीज की शुरुआत मैं नोएडा से कर रहा हूँ। सो वेलकम टू नोएडा। लेट्स गो एंड हैव अ टूर ऑफ नोएडा एंड talk about what is there to invest in real estate in Noida city. So welcome to Gautam Budh Nagar. करेंगे नोएडा के बारे में। नोएडा वो जगह है जहां पर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिला था करीबन 35 years back. There was a tax holiday, there were so many benefits to build up their industry in Noida. There were even residential plots that was given to the factory owners so that they can live in and around their factories. I remember that time. There were things where people were afraid of coming to Noida 25 years back from Delhi. But look at Noida today. What has it become? A beautiful, amazing planned city with no water logging happening during the rains, no major traffic jams during any time. You know, all the roads, all the planning is done in such a way कि यहाँ पर आप अपना जो टाइम है वो रोड पर बर्बाद नहीं करते हो। So if you are working in Noida or you are moving to Noida, there are a lot of opportunities, there's a lot of growth that has happened in Noida in the last 35 years. From a small, little, probably about 5 or 6 sectors, it has now become over 160 sector city with IT, production, media, all these opportunities of employment already available for all of us. What are the other opportunities in terms of, we talk about real estate? For large investors, there are industrial, corporate, IT and ITES plots and buildings where they can invest. But yes, the most important is you, the retail investor. अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा लगा सकता है। यू टॉक अबाउट कमर्शियल, यू टॉक अबाउट रेजिडेंशियल लैंड, यू टॉक अबाउट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर इन अबंडेंस। कमर्शियल में आप ऐसी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है। कमर्शियल में आप ऐसी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं जहां अभी पोजीशन अगले 2 से 3 साल में आने वाला है। रेजिडेंशियल लैंड की अगर मैं बात करूं, रेजिडेंशियल लैंड इज ऑलरेडी अलॉटेड बाय नोएडा अथॉरिटी। द एंटायर लैंड अलॉटेड इन नोएडा अथॉरिटी इज बेसिकली लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो देयर इज अ 90-year लीज फ्रॉम द नोएडा अथॉरिटी टू यू, व्हिच इज द लेसी। अब वो सारी लैंड इज क्लीन, क्लियर, सिंपल पेपर वर्क, वन स्टॉप शॉप है। नोएडा अथॉरिटी में आपने जाना है। इफ यू आर बाइंग अ रेजिडेंशियल लैंड और अ विला और अ कोठी, whatever you want to call it, the price range, if we talk about commercial में, you are looking at about 6,500 rupees per square feet से लेकर 12-13,000 15,000 रुपए per square feet तक you can have a lot of opportunities available on the Noida Expressway. If you talk about Sector 18, Sector 16A, which is the media sector, the price will be on a higher side. If you are on Noida Expressway, which is connecting you to Greater Noida, the prices will be a little on the lower side, between 6,500 and 9,500 rupees per square feet. In terms of residential land, the prices are almost starting from 110,000, मतलब 1,10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यहाँ जो भी लैंड बिकती है वो पर स्क्वायर मीटर पर बिकती है। तो 1,10,000 रुपए बेयर मिनिमम जो किसी भी सेक्टर का प्राइस है,
वहां से लेके आपके पास 5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक की अपॉर्चुनिटी है, विच इज सेक्टर 15A। मिड रेंज 3 लाख, अगर आप अपनी कोई बहुत अच्छी सुंदर कोठी बनाना चाहते हैं, सेक्टर 44 लोग दीवाने हैं उस सेक्टर के, सेक्टर 44 के, तो दैट इज इन द रेंज ऑफ 3,50,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। बट यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराउंड सेक्टर 105, 108, 92, 93B, sector 50, 51, 70, 71, where the range is like 1 lakh rupees per square meter से 1.5 lakh रुपए per square meter. If you are looking for even for an investment, even then it is a beautiful piece of land. Land के लिए तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, land is a God's product. You know, you are buying a God's product. They don't build it anymore. सिर्फ भगवान ने बनाया था, जितना है उतना ही है। तो लैंड में इन्वेस्ट करके तो आप कभी भी लॉस में आ ही नहीं सकते हो, भगवान का प्रोडक्ट। इफ यू टॉक अबाउट द नोएडा, हाउ इट इज फ्लोइंग, क्या कनेक्टिविटी है। वी एंटर फ्रॉम DND, विच यू ऑल नो इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। जो पुरानी एंट्री थी वो थी मयूर विहार की तरफ से, जहां पर वो बोर्ड लगा है, बुद्धा जी की मूर्ति है, मेरी वीडियो में आपने देखी होगी पहले, जहां वो लिखा है वेलकम टू नोएडा। दैट इज वन एंट्री। सेकंड एंट्री इज फ्रॉम DND। द थर्ड एंट्री इज फ्रॉम सेक्टर 63 NH24 से, जहां आप एंटर करते हो। द फोर्थ एंट्री इज फ्रॉम कालिंदी कुंज। तो इट इज वेरी वेल कनेक्टेड। और आप अगर आप यहाँ सिर्फ काम भी करते हो और दिल्ली में कहीं रहते हो, it doesn't take much time for you to reach Noida because the roads are so beautiful. It is very well connected with expressways. NH24 on one side, Yamuna Expressway on one side, supporting is Noida Expressway. But how is it framed? Noida, I think if we were to divide, इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नोएडा सेक्टर 16, जहां से आप एंट्री करते हो DND से, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 19, 21, 22, 25, 26, of course no one can forget sector 18 and the Atta market, the very famous Atta market, जिसके नाम से नोएडा जाना जाता है, कि वो अट्टा वाला नोएडा। नोएडा को आप सब लोग एक आवाज से तो जरूर पहचानते होंगे। 30 साल पहले जब दिल्ली से नोएडा की बस चलती थी तो एक आवाज है जो बड़ी फेमस थी, नवेटा 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 1222 1222 1222 1222। यस, वो अट्टा गांव है जो एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया आज की तारीख में। उसके सामने सेक्टर 18 है, वो भी एक कॉमर्शियल एरिया है जहाँ पर रिटेल आपके सारे शोरूम्स हैं। मॉल ऑफ इंडिया जो आज नया बन चुका है यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो अ डेस्टिनेशन। इट इज अ डेस्टिनेशन फॉर द इवनिंग। सो दैट पोर्शन अप टू सेक्टर 26, 29, 30, 36 तक के जितने भी सेक्टर हैं जो गोल्फ कोर्स रोड पर पड़ते हैं, ये सब पुराना नोएडा बोलते हैं लोग, ओल्ड नोएडा। Yes, of course, it is only 35 years old, but it is still called the old Noida. The second portion is the central Noida, sector 74, 75, 76, 77, sector 61. If you're looking at land, जो 70s वाले सेक्टर हैं वहाँ सिर्फ अपार्टमेंट्स ही हैं, बट सेक्टर 61, 50, 51 और इधर से सेक्टर 63, 64, 65, which is the इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेंट्रल नोएडा। तो सेंट्रल नोएडा इसलिए बोलते हैं कि इट इज वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम मेट्रो एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम द हाईवेज आल्सो। द थर्ड पोर्शन विच इज द नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसको आजकल लोगों ने नोएडा साउथ का भी नाम देना शुरू कर दिया है, वो DND से महामाया से आपका सीधा 24-25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। On the right hand side of the expressway, it is more of schools and universities. Jahan Amity University, Lotus Valley School, Genesis, all the major schools are found on the right side of the expressway. On the left hand side, you find the major sectors. कुछ sectors हैं जहाँ पर सिर्फ plots हैं, sector 105, 108, जैसा कि मैंने पहले कहा, 92, 93B, और बाकी कुछ sectors हैं जहाँ पर आपकी बिल्डर सोसाइटीज हैं, पुरानी, छोटी, बड़ी, हर टाइप की। नई भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो इसी साइड पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेक्टर 137, 140, 144,
यहाँ पर आपके नए प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जो कि किसान कोटा वाले प्लॉट्स होते हैं 5% वाले, बट दे आर डेवलप्ड, उनकी सबकी रजिस्ट्री है, कोई उसमें उनको भी परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द रोड वेयर you are being connected from Delhi to Greater Noida or from Delhi to Agra। अगर आपने जाना है तो भी आप इसी रोड से जाएंगे, अगर आपको दिल्ली टू लखनऊ जाना है तो भी आप इसी रोड पे जाएंगे। एंड गेस व्हाट, आई ट्रेवल्ड टू लखनऊ अ कपल ऑफ डेज बैक। क्या हाईवे है, मैंने दुनिया के बहुत हाईवेज पे ट्रेवल किया, दुबई अबू धाबी हाईवे भी फेल कर देता है ये हाईवे, इट इज सो ब्यूटीफुल। So the development is, it is happening in this region. The government is supporting all the major projects. The big companies, Microsoft, if you would have heard, has taken land in Noida. There are huge corporates and industries that have come and started making their offices or their facilities. TCS has taken almost a kind of a sector. In sector 150 से पहले they have taken up land। वो इतना बड़ा सेक्टर है, ऑलमोस्ट वहाँ पर 1 लाख, आई थिंक 1 लाख लोगों की फैसिलिटी वहाँ क्रिएट होने वाली है जो TCS करने वाला है। So imagine the economic activity that will happen around that area। So there are so many options as I discussed in Noida। आपके लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या अगर आप रहना चाहते हैं नोएडा में, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। 20-21 साल हो गए, आई एम इन लव विद नोएडा। द रोड्स, द लाइट्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई जस्ट लव इट। सो व्हेन आर यू कमिंग? ऑलराइट, दिस इज राजन signing off from this episode of Really, where you were given information about Noida. See you in the next city very soon.